Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to the lecture number 25. This lecture number 5 is basically a practice of our lecture number 24 that we have discussed how the cost of goods are calculated and how we calculate our net income after deducting these cost of goods. So, in my last lecture, we studied about cost, what is a cost, then what is a product cost, and then what is a period cost. Just giving you a brief information about these words or these terminologies, cost is basically a replacement value of any product or service. Or if I say a specific word about cost that we have used in our last lecture, that it is a sacrifice made to achieve a particular purpose measured by the resources given up. कि आपने कितने resources को give up किया है एक particular purpose को achieve करने के लिए, और उनको measure किया जाता है. measure means कि कितनी amount, what is actually the value. Then we have talked about a product cost. Product cost means कि any cost that is assigned to any specific product, और वो आपकी प्रोडक्ट से रेलेवेंट हो, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, प्रोडक्ट की परचेज से रिलेटेड हो. एंड वी हैव सीन ओवर देयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सो इफ आई कुड आस्क यू दैट cost of goods sold is a product cost or a period cost, then you must quickly say that this is an expense. Cost of goods sold is a cost or an expense. So this is an expense because we know that basic difference between cost and an expense is when you get the benefit from the cost, that becomes your an expense. आपने उससे benefit ले लिया. benefit कैसे लिया आपने? कि उसको सेल करके प्रोडक्ट को आपने उससे अपना रेवेन्यू जनरेट कर लिया हुआ है. ओके, देन पीरियड कॉस्ट, दैट कॉस्ट इज रिलेटेड विद द टाइम पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड. इसको आप स्पेसिफिकली ये नहीं कह सकते कि ये पीरियड आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है. इसका प्रोडक्शन प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं होता. इसका ताल्लुक होता है आपकी नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, आपके बिजनेस के ऑपरेशंस के साथ. आप डिवीजन कर देते हैं कि ये आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है, दैट इज यूज्ड फॉर योर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, वेयर एज योर पीरियड कॉस्ट इज दैट विच इज यूज्ड फॉर योर नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशंस. Then we have seen a component of manufacturing products. We have seen that there are three basic components. One is your material, the other is your labor, and the third one is your factory overheads, or sometimes we call it manufacturing overheads. I gave you an example in my previous lecture that if I could say that, for example, this is your pen and this is a product, and how this product is produced, rather than saying that कि ये आपकी प्रोडक्ट जो है इस पर आपने प्लास्टिक लगाई है, इसके ऊपर स्टील लगा हुआ है, यू शुड से दैट थ्री बेसिक कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट. आपने इसके ऊपर मटेरियल लगाया, इसके ऊपर आपने लेबर लगाई है, और इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स लगाए. मटेरियल इज दैट which can be traced out after the completion of product. कैसे? मैं बताता हूँ आपको. ये आपके पास पेन है, इसके ऊपर जो प्लास्टिक लगा हुआ है, commonly I am saying that this is a material. आपके पास फर्नीचर है, उसके ऊपर जो वुड लगी हुई है, that is your product, that is your material, and that can be traced out after completion of that product. आपको पता है कि फर्नीचर किसका बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ है.
So that is completed, and you can trace it out after completion of that furniture. Then we have seen a labor. Labor is that which is directly engaged on producing your product. डायरेक्ट लेबर वो जो उसके ऊपर काम कर रही है, फिजिकल काम कर रही है, उसको बना रही होती है. एंड द थर्ड वन इज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. These are those expenses which cannot be traced out after completion of your finished product, but these expenses helps you to produce your product. आप उसके बगैर अपनी प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते. अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी यूटिलिटी बिल्स, आप जाहिर है बिजली के बगैर आपकी मशीनें कैसे चलेंगी. इसी तरह आपके पास टेलीफोन है, ऑर्डर्स लेने होते हैं, आपने प्रोडक्शन प्रोसेस चलाना होता है, फोन कॉल्स करनी होती हैं, आपके टेलीफोन बिल्स, आप उसके बगैर नहीं चल सकते. गैस है, चीजें गैस पे चलती है, समटाइम आप हीटिंग यूज करते हैं उसके लिए, उसके बगैर आप काम ही नहीं कर सकते, तो आपके गैस के बिल्स. सो आई कॉमनली सेइंग यूटिलिटी बिल्स. देन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन of your equipment, depreciation of your building where your plant has been installed, and your plant depreciation. हर साल जाहिर है मशीनें चल रही हैं तो वो उनके expenses भी होंगे. Then lubricants which are used in your product, which is used in your factories, which is used in your machinery. आप जैसे engine oils होते हैं, ये सारे के सारे आपके यूज किए जाते हैं मशीन को चलाने के लिए. एंड देन आई मेड अ डिफरेंस बिटवीन अ डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल इज दैट कैन बी इजीली ट्रेस्ड आउट आफ्टर योर फिनिश प्रोडक्ट, वेयर एज इनडायरेक्ट मटेरियल इज दैट विच कैन नॉट बी ट्रेस्ड आउट इजीली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर प्रोडक्ट. उसकी एग्जाम्पल आपको मैंने दी थी, नेल्स हैं, आपने पॉलिश की हुई है फर्नीचर के ऊपर, गाड़ियों का पेंट होता है. बट इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, दैट कि आपने उसको कैसे लिया हुआ है. अगर आप कहते हैं कि किसी भी मटेरियल की अमाउंट हैवी हो जाती है तो हम उसको कह देते हैं कि ये हमारे डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है, या आप कह देते हैं कि ये इसकी अमाउंट इतनी हैवी नहीं है, तो बेशक वो विजिबल भी हो तो आप उसे कह देते हैं कि दैट इज अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. आपके नेल्स हैं, फर्नीचर बनाने की जो कीलें लगाते हैं आप, जो ग्लू यूज किया जाता है, दिस आर ऑल द पार्ट ऑफ योर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. एंड देन वी हैव सीन अ डिफरेंस बिटवीन अ डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर इज अ सेपरेट कंपोनेंट, अ सेकंड कंपोनेंट ऑफ योर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, कंपोनेंट्स ऑफ योर प्रोडक्ट. दैट डायरेक्ट लेबर विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस. जो लेबर फिजिकल काम कर रही है, मशीनों को हैंडल कर रहे हैं, प्रोडक्ट को पैकिंग, उनकी हैंडलिंग सब कुछ कर रहे होते हैं, तो दीज आर योर डायरेक्ट लेबर. और इनकी तादाद भी ज्यादा होती है, इसलिए इनकी अमाउंट भी हैवी होती है. लेकिन जो लेबर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस में, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर इनडायरेक्ट लेबर एंड विच इज अ पार्ट ऑफ योर फैक्ट्री ओवरहेड्स. कैसे? मैंने कहा आपको लास्ट टाइम कहा था कि 10 लेबर है, 10 लोग काम कर रहे हैं, उनके ऊपर एक सुपरवाइजर है. सुपरवाइजर इज नॉट डायरेक्टली इंगेज्ड ऑन योर प्रोडक्शन प्रोसेस, वो सिर्फ सुपरवाइज कर रहे हैं, उन लोगों को डायरेक्शंस दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि आपने काम कैसे करना है. तो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. आपके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं फैक्ट्री के, दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस, आपके वो किसका पार्ट होंगे? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का. देन आपके स्वीपर्स होंगे, दे आर नॉट इन्वॉल्व ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का हिस्सा होंगे. सो दीज आर बेसिकली द 3 कंपोनेंट्स ऑफ योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, योर डायरेक्ट मटीरियल, योर डायरेक्ट लेबर and manufacturing overheads. Then we have seen cost of goods manufactured, how cost of goods manufactured, how the calculation is made
of your product that you have manufactured. Then we have also calculated our cost of goods sold, which is more important because in our previous examples in our trading business we have seen that we should know about the cost of goods sold. Means these are the cost which is used for the sale of your product. इसी को आपने सेल करके कहा था कि that is actually a cost. Then manufacturing cost flows, कि आपका वो फ्लो कैसे होता है, we will also see in this lecture as well. And then income statement. हमारा फाइनल पर्पस ये होता है कि we have to calculate our income statement. We have to see our net income. आपने नेट इनकम देखनी होती है. उसके बाद आप कहते हैं कि आपके पास ये हमारे रिजल्ट्स रहे हैं, नेट रिजल्ट्स ऑफ योर बिजनेस ऑपरेशंस. So that was a basic overview of a previous lecture. I just give you a brief information about these types as I have told you. ये थोड़ा सा इसको overview करें, then we will go forward. Direct material, raw material that can be traced out in the finished product. Direct labor, salaries, wages, fringe benefits for the people directly working on production. इसमें थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताता चलूँ. फॉर एग्जाम्पल आपने सैलरीज दी हैं अपने एम्प्लॉयज़ को. आपने फॉर एग्जाम्पल 10,000 सैलरी दी अपने एम्प्लॉयज़ को और आपने उनको बोनस भी दे दिया था 5,000 का. तो दैट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ योर डायरेक्ट लेबर. इसको आप इनडायरेक्ट में नहीं लेके जाएंगे क्योंकि जो भी आपकी कॉस्ट रिलेट करती है आपकी डायरेक्ट लेबर के साथ, वो डायरेक्ट लेबर का ही हिस्सा बन जाती है. देन वी हैव सीन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनसिग्निफिकेंट टू ट्रेस, कॉस्ट ऑफ ड्रिल बिट्स हैं, ग्लूज हैं, नेल्स, कीलें वगैरह होती हैं, इनडायरेक्ट लेबर, डिपार्टमेंट सुपरवाइजर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह. आपको एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दे दी है इनकी. एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, इसमें डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, मशीनरी, प्रॉपर्टी टैक्सेस. This property tax means this is related with your premises where your factory is installed. Then आपने उसकी इंश्योरेंस करवाई है उस फैक्ट्री की, उसकी प्लांट की, कि आग लग गई तो कोई और कॉन्टीजेंसी हो सकता है तो आप फिर उसकी इंश्योरेंस करवा लेते हैं. अब वो प्लांट की इंश्योरेंस है, उस फैक्ट्री की इंश्योरेंस है, तो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. लेकिन अगर यही इंश्योरेंस आपके सेल्स ऑफिस की है तो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. देन इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये आपको यूटिलिटी बिल्स मैंने ऑलरेडी बता दिया हमें. वी हैव आल्सो सीन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फ्लोज इन विच वी हैव सीन योर मटीरियल, योर labor and your FOH. These are basically the components which goes into your work in process, and that work in process goes into your finished goods. And out of that finished goods you sold out your product. आप इसी में से फिनिश प्रोडक्ट में से सेल करते हैं तो आपकी वो कॉस्ट ऑफ सेल्स या जिसको आप कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि जो आपने चीज़ें सेल की हैं उनकी कॉस्ट कितनी थी, आपको वो कितने में पड़ी, उसके बाद उसमें आप प्रॉफिट मार्जिन अपना ऐड करते हैं. यहाँ पर एक चीज़ देखते चलें कि आपने मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में लेके गए, लेबर वर्क इन प्रोसेस में लेके गए, FOH वर्क इन प्रोसेस में लेके गए, तो इस सारी की सारी टोटल कॉस्ट को आप कहते हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. इन तीनों का जब टोटल करते हैं तो दैट बिकम्स अ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. फिर जब आप इस स्टेज पर पहुंचते हैं वर्क इन प्रोसेस पे, काम जितना आपने कंप्लीट कर लिया उसको आप बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड.
कि आपने जो मैन्युफैक्चर्ड कर ली हैं चीजें, आपका पास्ट टेंस है यहाँ पे, उनकी कॉस्ट कितनी है। फिर उसके बाद आप फिनिश गुड्स पे आते हैं। फिनिश गुड्स में आपने कुछ चीजें ऑलरेडी आपके पास पड़ी थी, फिर आपने और बनाई, तो टोटल आपके पास जो बनता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इनको मैं फर्दर डिटेल में भी बताऊंगा आगे। तो ये सारे का सारा प्रोसेस होता है। अब वर्क इन प्रोसेस में दोबारा आऊंगा कि आपके पास पिछले प्रोसेस में भी चीजें पड़ी थी जो अभी आपकी कंप्लीट नहीं हुई थी। आपका फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर आ गया, चीजें आपने कुछ और ऑलरेडी बनाई थी, अब वो उन पे प्रोसेस चल रहा था, हो सकता है वो 80%, 90%, 95% तक कंप्लीट हुई हो। तो जब 31 दिसंबर आ गया तो आपने कहा कि दीज आर ऑल नाउ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, नेक्स्ट ईयर इस पर हम और काम शुरू करेंगे, तो फिर ये आपकी फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इसी तरह आपके ये सारे के सारे प्रोसेस चलते रहते हैं, आप यही सारे के सारा काम कर रहे होते हैं। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल एंड सॉल्विंग इट बाय माई ओन सेल्फ कि आपने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आपके पास कौन कौन से आइटम्स अवेलेबल हैं। और आप इसका अगर टाइटल देखें, फॉलोइंग डाटा रेफर्स टू द कंपनीज XYZ फॉर द ईयर 2008, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2008। अब आपसे ये एक रिक्वायरमेंट दी गई है। अब इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको उसने ये नहीं कहा कि प्रिपेयर अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रिपेयर अ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, टेल अस टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, आपसे उसने कुछ भी नहीं कहा। आपको सिंपल बताया ये गया है कि आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, और इनकम स्टेटमेंट में आपको कौन कौन से आइटम्स रिक्वायर्ड होते हैं। आपको पता है सेल्स, आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहां पे कहीं दी गई है, इसको चेक करें जरा। आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं, आपने टैक्स देखना होता है, और देन आप फाइनली नेट इनकम पे पहुंचते हैं। यू जस्ट लुक एट दिस स्लाइड। आई विल स्टार्ट solving this question by my own self, then you can see how these questions are solved. आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ पेयर्स भी नजर आ रहे होंगे, आप उसको सिर्फ 1 मिनट के लिए देखिए, then we will move forward. Now we just make a first differentiation that which items relates to the income statement and which item relates with your cost of goods sold. यहाँ पर आप देखें सेल्स रेवेन्यू, इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दैट इज अ पार्ट ऑफ योर इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, योर CGS पार्ट. वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री December
फर्स्ट ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ योर CGS. Then selling and administrative expenses. Selling and administrative expenses are actually operating expenses. So these are all the part of your income statement. Then income tax, 40%. Income tax that is always paid or payable on your net income. So that is also part of your income statement. Purchase of raw material, part of your CGS. Then raw material inventory, opening and ending. These are all the part of your CGS. Then again opening, ending, CGS. Direct labor is a part of your cost of goods sold, CGS. Utilities plant, they have specifically mentioned here plant. It means that is a part of your product production process, and this would be your CGS. Depreciation plant, part of your CGS, because this is related with your plant. Finished goods, part of cost of goods sold. Finished product, finished goods inventory, part of your CGS. Indirect material, as I told you that indirect material is a part of your total manufacturing cost, and it is related with your manufacturing overheads, so it would be CGS. Then indirect labor, again it is a part of your CGS, and other manufacturing overheads, part of your CGS. So we have differentiated the components of income statement and balance sheet. Now to make it more easy, we should also differentiate the factory overheads या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ताकि हम देख लें कि टोटल इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. तो उसके सामने हम FOH लिखते जाएंगे, यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखते जाएंगे. आप यहाँ पे एक कॉलम बनाएं. यहाँ पर तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है कि दीज कंपोनेंट्स आर ईदर फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट और फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. फिर उसमें आप देखें कि कौन से आइटम्स आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के हैं. आपके पास यूटिलिटीज प्लांट FOH का पार्ट है. डेप्रिसिएशन FOH का पार्ट है. देन इनडायरेक्ट मटेरियल FOH का पार्ट है. इनडायरेक्ट लेबर FOH का पार्ट है. देन अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स FOH का पार्ट है. These are 5 components related with your factory overheads, या इसको आप मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कहेंगे. अब यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा काम इजी हो गया, क्योंकि जब आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनाएंगे तो आपको इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स नहीं चाहिए. आपको सिंपल चाहिए है आपके जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से रिलेटेड है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर दैट व्हाट वी हैव टू स्टार्ट. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम मटेरियल. आप देखेंगे मटेरियल में आपके पास कौन कौन सी चीजें मौजूद है. एंड वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस लेक्चर दैट कुछ मटेरियल ऑलरेडी आपके पास पड़ा होता है, दैट इज अनयूटिलाइज्ड फ्रॉम योर प्रीवियस मंथ प्रोडक्शन प्रोसेस. तो आप उसको भी फिर प्रोसेस में लेके आते हैं. फिर वो मटेरियल आपकी इस महीने की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहा होता, तो फिर आप और परचेज करते हैं. जब पुराना मटेरियल प्लस जो आपने करंट परचेज किया है, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो आपके पास अब मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ जाता है कि अब टोटल मटेरियल आपके पास इतना मौजूद है, इसमें से ही आपने यूटिलाइज करना है. तो आपने निकालना वो है कि नेट मटेरियल यूज्ड. तो जो नहीं यूज हुआ आप उसको साइड पे निकाल देते हैं. सो दैट इज डन इन दिस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. फॉर एग्जांपल वी हैव टू स्टार्ट आवर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और उसमें आपको बताया गया है कि कंपनी X, Y और Z ये कंपनी है, एंड यू आर मेकिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. यू आर मेकिंग दिस स्टेटमेंट दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फॉर द पीरियड
फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर, आपने ये काम कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब आप यहां पर अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करें। आपके पास नेट अमाउंट्स इस कॉलम फाइनल कॉलम में आ जाएंगी, ग्रॉस अमाउंट्स आपकी इस कॉलम में आ जाएंगी। बाकी आप एक और कॉलम बना लेते हैं जिसमें आपने और इसके अलावा कोई अगर कैलकुलेशंस होती हैं तो वो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। फर्स्ट यू हैव मटेरियल, दिसंबर 01। आपके पास जो ओपनिंग मटेरियल था उसको अब आपने ओपनिंग नहीं लिखना होगा, जो एक फॉर्मल तरीका, उसमें आपने लिखना होता है कि कब स्टार्ट हो रहा है कब एंड हो रहा है। नाउ मटेरियल दिसंबर 1 आपके पास वो अमाउंट आपने देखनी है, प्लस यू हैव मेड मोर परचेजेस, परचेजेस ऑफ मटेरियल, वो कितनी अब वो कर रहे हैं। तो आपके पास जो अमाउंट आएगी टोटल मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। अब ये वो मटेरियल है जो आपके पास अवेलेबल है फॉर यूज के लिए। देन इसमें से माइनस करेंगे मटेरियल दिसंबर 31, ये वो मटेरियल है जो आपका यूज नहीं हुआ। आप ये वो कैलकुलेशंस कर रहे हैं अपनी, एक हिस्सा आपने ये पूरा कर दिया हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन में ये तीनों आपके कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं जिनको आपने करना होगा। अब वापस अपनी स्लाइड पर जाएं, उसमें चेक करें कि आपके पास मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, आपने और परचेजेस कितनी की हैं, और एंडिंग इन्वेंट्री आपकी कितनी है। लेट्स सी, आपके पास दैट इज रॉ मटेरियल परचेज्ड, देन आपके पास रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री, देन सॉरी दिस इज एन एंडिंग इन्वेंट्री, देन रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री। आपके पास ये तीनों कंपोनेंट्स मौजूद है और इनकी अमाउंट्स भी अवेलेबल है। आपके पास ओपनिंग 40,000 की है, दिस इज अ 40,000 अमाउंट, एंडिंग इन्वेंट्री आपकी 25,000 की है, और आपने जो फर्दर परचेजेस किए हैं वो 1,80,000 की हैं। सो दीज अमाउंट्स आर पुट इट इन योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट। आप उनको ऐड करें। आपके पास 40,000 की ओपनिंग इन्वेंट्री ऑलरेडी थी, इसमें आपने 1,80,000 की और परचेजेस की। अब आपके पास मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ जाएगा, दैट इज 2,20,000। फिर इसमें से आपने एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस करना है, दैट वाज 25,000। आपके पास जो टोटल अमाउंट बचती है, अब या तो इस कॉलम में लिख लें या इसको वापस अगेन पहले कॉलम ही लेके टोटल अमाउंट आप नेक्स्ट शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे इनको अरेज कर रहा हूं। आपके पास अगेन 2,20,000 की अमाउंट आएगी, इसमें आपने माइनस किया 25,000। आपके पास नेट मटेरियल यूज, अब इसको आप नेक्स्ट कॉलम में लिख सकते हैं 1,95,000 का। ये अब आपके पास मटेरियल यूज हुआ है, इसको आप लिखेंगे मटेरियल यूज्ड। आपने अब ये काम अपना कंप्लीट कर दिया मटेरियल से रिलेटेड। देन वी एड अप डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर की अमाउंट देखें कि डायरेक्ट लेबर की अमाउंट आपकी कितनी थी। लेट्स अगेन गो बैक एंड लेट्स सी व्हाट इज अ डायरेक्ट लेबर टोटल कॉस्ट। नाउ दिस इज योर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट।
So you add up this direct labor cost which is now 2 lakh rupees. इसको आप ऐड करें, डायरेक्ट लेबर 2 लाख, 2 लाख टोटल अमाउंट आएगी। इन दोनों को आपने जब ऐड किया तो वी नो दैट कि आपके पास मटेरियल प्लस लेबर दोनों को मिलकर आपकी जो कॉस्ट आएगी दैट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। आप यहां पर लिखें प्राइम कॉस्ट। दैट इज 3,95,000। आपने ये यहां पर कंप्लीट कर दिया हुआ है। देन वी विल ऐड अप आवर FOH या फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सपेंसेस या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक्सपेंसेस। आप देखें कि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कौन कौन से हैं। आपके पास यूटिलिटीज प्लांट, आपने जो अमाउंट देखी थी दैट इज 40,000। देन डेप्रिसिएशन प्लांट एंड इक्विपमेंट 60,000 आपके पास ये मौजूद है। देन इनडायरेक्ट मटेरियल 10,000, इनडायरेक्ट लेबर 15,000 एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग या अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सपेंसेस दैट इज 80,000। तो सबको आप यहां पर ऐड करेंगे। आपने यहां पे स्टार्ट किया यूटिलिटीज से, यूटिलिटीज एक्सपेंस आपके पास 40,000 की अमाउंट। देन डेप्रिसिएशन प्लांट एंड इक्विपमेंट, यहां पर मैं एब्रीविएशन ही लिख रहा हूं इनकी, प्लांट एंड इक्विपमेंट 60,000। इसके अलावा आपके पास और कौन से कंपोनेंट थे? आपके पास इनडायरेक्ट मटेरियल 10,000 का, इनडायरेक्ट लेबर आपके पास 15,000 और अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या FOH आपके 80,000 के थे। आपके पास ये 5 ही कंपोनेंट थे जो आपके फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड थे। नाउ यू मस्ट कैलकुलेट ऑल दीज 5 कंपोनेंट्स। आपकी इनकी टोटल अमाउंट कितनी बनेगी आप इसको जरा चेक करें। वी हैव अ टोटल अमाउंट ऑफ 2,05,000। ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की कॉस्ट थी। आपके पास मटेरियल, लेबर और FOH किया तो आपने पहले प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट की मटेरियल और लेबर को, देन यू ऐड अप फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो तीसरा कंपोनेंट था उसको आपने ऐड किया, तो आपके पास टोटल अमाउंट आएगी दैट इज कॉल्ड टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यानी आपने 3,95,000 में 2,05,000 ऐड किया तो टोटल अमाउंट आपकी बनती है 6 लाख। नाउ योर 6 लाख इज टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सो यू हैव डन ऑल अबाउट दिस। आपने कितने कितने कंपोनेंट्स कर दिए हुए, उनको आप काटते जाएं कि कौन कौन से आपने कंपोनेंट्स अभी तक यूज कर लिए हुए हैं। आपने ये सारे का सारा पार्ट कंप्लीट कर दिया। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री और एंडिंग इन्वेंट्री। देन आपने डायरेक्ट लेबर भी कंप्लीट कर दिया हुआ है। यूटिलिटीज प्लांट, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड इक्विपमेंट ये भी आपने ऐड कर दिया हुआ है। फिर 3 कंपोनेंट्स आपके इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, इन तीनों को भी आपने कर दिया हुआ है। अब आप देखें कि आपके पास अब काम सिंप्लीफाइड होता जा रहा है। नेक्स्ट आपने इसमें फिर वर्क इन प्रोसेस लेके आना है, क्योंकि वी नो दैट कि ऑल ऑफ योर मटेरियल, लेबर, FOH गोज इनटू योर वर्क इन प्रोसेस। ये सारे के सारे वर्क इन प्रोसेस में चले गए। अब आपने नेक्स्ट काम करना होता है अपना कि आप जो ऑलरेडी वर्क इन प्रोसेस पड़ा हुआ है उसको आपने ऐड करना है, उसको भी काम में लेके आना है, उसके भी ऊपर काम करना है आपने। जाहिर आपने अगर 80% तक काम कंप्लीट कर लिया हुआ है, 20% रहता है तो आपने उसको भी तो कंप्लीट करना है। तो आपकी प्रायोरिटी ये होगी कि पहले उसको कंप्लीट किया जाए, क्योंकि उसके ऊपर आपकी मटेरियल ऑलरेडी लगा हुआ है। लेबर ने 80% तक काम किया हुआ है,
जस्ट 20% रहता है तो आप उसको भी कंप्लीट करके फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। सो आपने अगेन यही कॉलम्स बनाए आपने, आपके पास ये 3 कॉलम कंप्लीट है। अब इसमें आप देखें कि आपके पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी 6 लाख की थी जो आपने कैलकुलेट की है। इसमें आप ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस दिसंबर 01। आपने ओपनिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस की, अगर इन ब्रेसेस में यहां पे ओपनिंग लिख देता हूं जस्ट टू टेल कि दिस इज एन ओपनिंग इन्वेंट्री। फिर आपके पास जब आप इसमें वो इन्वेंट्री ऐड कर देंगे तो आपके पास आता है टोटल वर्क इन प्रोसेस, कि आपका ये सारे का सारा अब वर्क इन प्रोसेस में है। देन यू विल डिडक्ट एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस December 31st. This would be your ending inventory, and we know that this ending inventory means कि आप 31 दिसंबर पर पहुंच चुके हैं, महीना आपका कंप्लीट हो चुका है। ये वो काम है जो अभी इसके ऊपर आपने और काम करना है, ये काम आपका कंप्लीट नहीं हुआ। सो वी नीड 2 more components फ्रॉम आवर फाइनेंशियल डाटा, ताकि हम अपनी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पर पहुंच जाएं। सो आफ्टर डिडक्टिंग दिस वर्क इन प्रोसेस वी विल रीच अप टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कि आपने काम कंप्लीट कर दिया हुआ है जिस पर आपने काम करना था। ये वो चीजें हैं, ये वो कॉस्ट है कि जो आपने कंप्लीट कर दी हैं। आपने प्रोसेस स्टार्ट किया, प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद आप पहुंच गए हैं एक लेवल पे, आपने वो प्रोसेस चलता रहा जो स्टार्ट किया था, अब वो प्रोसेस आपने कंप्लीट कर दिया हुआ है। आपने जो काम स्टार्ट किया था, मटेरियल लेबर एफएच लगाया था, तो अब वो आपने इतनी प्रोडक्ट बना दी हैं और उनकी कॉस्ट ही है, यानी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड उनकी कॉस्ट कितनी है, आपने चीजें बना दी हैं उनकी कॉस्ट कितनी है। लेट्स सी देयर टोटल अमाउंट्स। आपके पास ये शुरू में पड़े हुए हैं, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री December 31, ये आपकी एंडिंग इन्वेंट्री है। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री December 01, ये आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है। नाउ योर ओपनिंग इन्वेंट्री इज 40,000 and ending inventory is 30,000. So you add up all these amounts. Opening inventory that is your 40,000. आपने इसको ऐड किया कि जिसके ऊपर ऑलरेडी आप काम कर रहे थे और महीना खत्म हो गया था, अब वो नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। नाउ द टोटल अमाउंट इज 6,40,000। ये आपकी अब टोटल अमाउंट है। अब आपने अपना काम स्टार्ट किया, प्लस जो आपका पिछले महीने का काम रहता था वो भी काम आपने कर दिया, तो टोटल अब वर्क इन प्रोसेस में आपका काम कितनी कॉस्ट का है? 6,40,000 का। अब महीने का एंड आ गया तो आपने देखा कि 30,000 का काम अभी तक बाकी पड़ा हुआ है जिसको हमने करना है, लेकिन वो अब नेक्स्ट मंथ होगा जाके। सो यू डिडक्ट दैट 30,000 from this amount. So 6,10,000 is an amount on which you have completed your product. आपने जो प्रोसेस शुरू किया अब आप उस पर पहुंच चुके हैं। सो टोटल अमाउंट इज योर 6,10,000 कि अब ये काम जो आपने शुरू किया था प्लस पिछला काम जो चल रहा था वो ऐड किया, और आपने जो काम कंप्लीट किया है, जो आपने चीजें मैन्युफैक्चर की हैं, उनकी कॉस्ट कितनी है? 6,10,000। अब आपके पास कुछ चीजें ऑलरेडी बनी पड़ी थी जो सेल नहीं हुई थी। आपने फॉर एग्जांपल मे बी आपकी 1 लाख की चीजें पड़ी थी, एग्जांपल दे रहा हूं आपको,
इसमें से आपने 80,000 की सेल कर दी, टोटल आपके पास 20,000 की चीज़ें पड़ी हैं, अभी सेल नहीं। तो ये जो 20,000 है ये और ऐड हो जाएगा जो आपने चीज़ें बनाई हैं। अब ये भी फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, फिनिश्ड मीन्स कि आपकी कंप्लीटेड प्रोडक्ट्स हैं ये वाली भी, प्लस ऑलरेडी कंप्लीटेड भी पड़ी हैं जो अनसेल्ड रही हैं पिछले महीने में, अनसोल्ड थी पिछले महीने में, पिछले महीने आपकी सेल नहीं हुई। जो पिछले महीने सेल नहीं, आप देखना चाहते हैं कि अब हमारे पास सेलेबल प्रोडक्ट्स कितने की हैं, तो वो आप करेंगे। फिर आपने क्या किया, ऐड फिनिश्ड गुड्स December 01। जब आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ये अमाउंट ऐड की तो आपके पास जो अमाउंट, जो एक कॉस्ट बनेगी वो आपकी होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कि अब ये चीजें आपके पास अवेलेबल हैं सेल होने के लिए। तो आपने अपने कस्टमर्स को कहा कि नाउ दीज आर द प्रोडक्ट्स वी हैव फिनिश्ड, हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, इसमें से आप सेल करना चाहे करें। तो कुछ लोगों ने चीजें सेल की, अब सेल हो गई, कुछ चीजें आपकी सेल नहीं हुई। जिस तरह आपकी पिछली 40,000 की अमाउंट पड़ी थी, इसी तरह आपकी नेक्स्ट मंथ में भी बच जाएंगी, वो चीजें सेल नहीं होंगी। तो फिर वो क्या होंगी, आपकी फिनिश्ड गुड्स December 31, या इसको कहेंगे फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। अब उसको आपने माइनस किया, आपके पास अवेलेबल फॉर सेल थी, उसमें से आपने जो चीज़ें सेल नहीं हुई वो अलग से कर दी। तो जो चीज़ें सेल हो गई उनकी कॉस्ट कितनी है, हमने वो कैलकुलेट करना था। अब ओपनिंग फिनिश गुड्स आप देखें कि आपके पास कितनी थी, एंडिंग फिनिश गुड्स आपकी कितनी है, तो वो आपने माइनस की, आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी कि आपने कितनी सेल्स की हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द बेसिक अमाउंट्स। आपके पास फिनिश गुड्स ये पड़ी हैं, आपने ये भी माइनस कर दी वर्क इन प्रोसेस की, क्योंकि वो आप कैलकुलेट कर चुके हैं। सो फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी 20,000 की है और फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री आपकी 50,000 की है। इनके अमाउंट्स हम कैलकुलेट करेंगे। फिनिश गुड्स 20,000, ओपनिंग इन्वेंट्री वो आपने ऐड किया, अमाउंट इज 6,30,000। अब ये वो कॉस्ट है उन प्रोडक्ट्स की जो आपके पास अवेलेबल फॉर सेल है। दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल फॉर सेल इन द मार्केट। आपने जितना काम करना था सारा कंप्लीट कर दिया हुआ है, वो कंप्लीट हो गया हुआ है, उसमें सब आपने चीज़ें सेल करनी है। चीज़ें सेल होने के लिए जो पड़ी हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, 6,30,000। अब सेल हो गई हैं चीज़ें आपकी, इन 6,30,000 में से सेल हुई कितनी नहीं है आपकी, 50,000 की। तो आपके पास अब 5,80,000 ये आपकी सेल हो चुकी हैं। इसको आप कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपने यही कैलकुलेट करना था कि आपने जो चीज़ें सेल की हैं उनकी कॉस्ट कितनी है। दैट इज योर 5,80,000 एंड दिस इज अ टोटल अमाउंट। आप यहाँ पर जब एक लाइंस के थ्रू बनाएंगे तो फिर आपके पास सिमेट्री भी बनेगा, आपकी हर वैल्यू, आपकी हर एक जो टाइटल है उसके सामने शो होगी। सो वी हैड टू कैलकुलेट बेसिकली दिस अमाउंट 5,80,000। 5,80,000 हमने कैलकुलेट करना था। ये वो कॉस्ट है कि जिनकी प्रोडक्ट्स हमने सेल की, क्योंकि हमने कैलकुलेट क्या करना है, नेट इनकम। जब आपने नेट इनकम कैलकुलेट करनी है तो उस वक्त आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आपके पास ये अमाउंट मौजूद है 5,80,000 की, यानी इसको आप कहेंगे सी
CGS इज योर 5,80,000, 5,80,000 की अमाउंट है जो आपने प्रोडक्ट सेल की थी, उनकी कॉस्ट आपको वो कितने में पड़ी, 5,80,000 रुपए की। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अब फिनिश गुड्स भी कंप्लीट कर दी हैं। अब आपके पास सेल्स रेवेन्यू, इनकम टैक्स, उसके बाद आपके पास सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। आपको ये चीज़ें चाहिए जो आपके पास इनकम स्टेटमेंट के कैलकुलेट करने के लिए चाहिए होती हैं। इनके अमाउंट्स देख लें कि सेल्स रेवेन्यू यू हैड 9,50,000, उसमें से आप कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर रहे हैं 5,80,000 की, जो आपने खुद कैलकुलेट की है। देन यू आर डिडक्टिंग सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1,50,000। आपके पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। अब आपके पास इंटरेस्ट तो है नहीं, टैक्स है। टैक्स की उन्होंने परसेंटेज बताई है। यही बार बार आपसे मैं रिपीट करता रहा हूँ, हमेशा आपसे इसी चीज़ की रेपिटेशन की है कि आपने इनकम टैक्स की एक परसेंटेज होती है, वो देनी होती है आपने आफ्टर ऑल ऑफ योर एक्सपेंसेस। जितने एक्सपेंसेस होंगे आपने उन पर टैक्स देना होता है जो आपकी नेट इनकम आती है। नाउ वी गो अगेन बैक ऑन आवर टोटल डाटा। आप इसमें से देखें कि आपको कौन कौन सी फिगर्स चाहिए थी, आपने जो नहीं चाहिए वो यहाँ पे क्रॉस कर दें। आपने वर्क इन प्रोसेस यूज़ कर लिया हुआ है, उसके बाद आपने मटेरियल यूज़ कर लिया हुआ है, रॉ मटेरियल भी यूज़ कर दिया आपने रॉ मटेरियल की दोनों इन्वेंट्रीज यूज़ कर दी हैं, डायरेक्ट लेबर भी यूटिलाइज कर चुके हैं, यूटिलिटीज़ भी यूटिलाइज कर चुके हैं। देन यू हैव ऑलरेडी यूटिलाइज्ड डेप्रिसिएशन, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ये भी आपने इसमें से माइनस कर दिया। अब आपके पास सेल्स रह गई हैं, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रह गए हैं, इनकम टैक्स रह गया हुआ है। सो दीज आर बेसिकली द कंपोनेंट्स विच आर रिक्वायर्ड। 9,50,000, देन 1,50,000 एंड 40%। ये कंपोनेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। बाकी आप सारे के सारे अपने क्वेश्चंस में से यूटिलाइज कर चुके हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगें तो यही तरीका यूज़ किया करें कि जो आप यूटिलाइज कर चुके हो उसको क्रॉस कर दिए करें, बिकॉज दैट हैज़ ऑलरेडी बीन यूटिलाइज्ड। अब आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है अपनी। अगेन आप वही काम करेंगे जो आप नॉर्मल पहले भी करते थे कि आपने पहले कंपनी का नाम XYZ, कोई भी कंपनी होगी तो आपने उसका नाम लिखना होगा। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ XYZ, एक डमी नेम ले रहा हूँ। देन इनकम स्टेटमेंट, आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई। देन फॉर द पीरियड December 31st, अब इसमें ईयर आपका कोई भी हो सकता है, वो आपने मेंशन करना है। फॉर द पीरियड, किस पीरियड की बना रहे हैं, December 31st 2008। अब आपके पास जो डाटा था वो 2008 का था, तो यहाँ पे आप 2008 की बनाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि अंडरस्टूड आप 1 साल की बना रहे हैं या 1 महीने की बना रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो कॉस्ट का डाटा था वो सारा 1 महीने का था, दिसंबर का था, यानी December 1st से December 31st उसका डाटा था, तो आपने वो सारा डाटा यूटिलाइज किया। देन यू विल मेक अगेन दीज कॉलम्स, जो आपके कॉलम्स थे जो नॉर्मली आप बनाते हैं। क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा डाटा नहीं है तो इसके लिए ज़्यादा कॉलम्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप शुरू करेंगे सेल्स रेवेन्यू से। सेल्स रेवेन्यू, इसमें आपने सेल्स की हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को सेल्स किया है, तो उसमें आपके पास 9,50,000 की सेल्स हुई है। नाउ इफ़ यू कुड रिमेंबर इन माय प्रीवियस लेक्चर यू हैव सीन दैट कि आपके पास सेल्स में रिटर्न भी होते हैं, अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, डिस्काउंट भी दिए जाता है, उसके बाद नेट सेल्स आती हैं। यहाँ पे आपके पास एक सिंपल डाटा है। अगेन आपके पास जो परचेजेस कर रहे होते हैं तो उसमें आपके परचेज रिटर्न भी होता है, परचेजेस अलाउंसेस भी होते हैं, परचेज डिस्काउंट भी होता है, उनको भी आप माइनस करके नेट परचेजेस करते हैं। आपके पास ये अब एक एग्जैक्ट अमाउंट बताई गई है सेल्स की 9,50,000। देन यू विल डिडक्ट कॉस्ट
ऑफ गुड्स सोल्ड and that was the amount of 5,80,000। आपके पास 5,80,000 की अमाउंट थी। ये डिडक्ट करने के बाद वी नो दैट वी कैन कैलकुलेट अ ग्रॉस प्रॉफिट विच इज ग्रॉस प्रॉफिट। माइनस करें इसमें से, कैलकुलेट करके देखें कि आपने कितनी अमाउंट इसमें कैलकुलेट की है, एंड दैट इज योर 3,70,000। ये आपके पास अब ग्रॉस प्रॉफिट है। सो यू हैव कैलकुलेटेड योर ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, कि आपने चीजें कितने में बनाई, आपने 5,80,000 की बनाई हैं जो आपने सेल की हैं। आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आया 3,70,000 का। इसमें से आपने माइनस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके कितनी अमाउंट के थे? आपके पास सिंपल एक ही एग्जैक्ट फिगर बताई थी, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो उसको इसी नाम से लिखें, सेलिंग एंड एडमिन या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। उनकी अमाउंट देखिए, उसकी अमाउंट आपके पास अवेलेबल थी 1,50,000 की। अब डिपेंड करता है कि आप इसको इसी कॉलम में लिखें या नेक्स्ट कॉलम में लिखें। सेम इसको आप अगर नेक्स्ट कॉलम में ट्रांसफर कर दें, 3,70,000 दैट वाज योर ग्रॉस प्रॉफिट एंड 1,50,000 सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। आप 3,70,000 ग्रॉस प्रॉफिट में से 1,50,000 आप निकालेंगे, अमाउंट डिडक्ट करेंगे, तो आपके पास आएगा ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम माइनस करें इसमें से 2,20,000। This would be a total amount that has been calculated after deducting your cost of goods sold and your operating expenses। ये अमाउंट आपके पास आ चुकी है। अब इस अमाउंट पर आपने इनकम टैक्स लेना है। बजाय इसके कि आप 9,50,000 पे लेते, आपने उस अमाउंट पे नहीं लेना। आपने ग्रॉस प्रॉफिट माइनस किया, आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया, फिर आपने उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए, देन जो आपके पास अमाउंट आएगी इसको आप या तो ऑपरेटिंग इनकम लिखेंगे या इसको लिखेंगे EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इंटरेस्ट नहीं है हमारे पास तो हम इसको अर्निंग बिफोर टैक्स ये लिख सकते हैं। अर्निंग बिफोर टैक्स यानी टैक्स से पहले आपकी जो अर्निंग्स है आपने वो माइनस करनी है, और आपको बताया गया है कि टैक्स कितनी अमाउंट बनती है आपकी। टैक्स आपके पास 40% उन्होंने बताया। क्वेश्चन पे चेक करें आप, आपके पास टैक्स हैज अ 40%। ये आपने फिर 40% किस पे कैलकुलेट करना होगा? 2,20,000 पे। आप यहीं पर इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूं, 2,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 40 ओवर 100, तो आपके पास अमाउंट आएगी 88,000। ये 88,000 आपका इनकम टैक्स होगा, वो आप इसमें से माइनस करेंगे। 88,000 आपने टैक्स माइनस किया, तो अब आपके पास नेट इनकम आएगी। 2,20,000 में से 88,000 आप इनकम टैक्स माइनस करेंगे, तो आपके पास अमाउंट आएगी 1,32,000। दिस इज योर नेट इनकम एंड यू हैव फुलफिल्ड योर रिक्वायरमेंट। वो रिक्वायरमेंट आपकी क्या थी? प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2008। आपको ये इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए पहले आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाना पड़ा, और इवन कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कहता है कि कैलकुलेट नेट इनकम, आपको एक छोटी सी बात कही है, उसने आपको एक आखिरी बात कैलकुलेट करने के लिए कह दिया हुआ है, कैलकुलेट योर नेट इनकम। तो आपको सारे प्रोसेस से होके जाना पड़ा है, एंड दैट प्रोसेस वाज स्टार्टेड फ्रॉम योर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विच इंक्लूड्स योर मटीरियल, लेबर, FOH। देन आपने फिर उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, टोटल वर्क इन प्रोसेस, देन फिर आपके पास
उसमें एंडिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट किया आपने। अब वो आपको सेपरेटली नहीं कह रहा कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बताएं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बताएं, फिर आपको ये नहीं कह रहा कि आप हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल बताएं। आपसे सिंपल उसने कहा कि कैलकुलेट नेट इनकम, और आपने नेट इनकम कैलकुलेट कर दी, एंड दैट नेट इनकम वाज कैलकुलेटेड थ्रू प्रिपेयरिंग फर्स्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, देन यू प्रिपेयर्ड योर इनकम स्टेटमेंट, और फिर आप एंड पे निकले नेट इनकम की, एंड दैट अमाउंट वाज 1,32,000। आपको मैं बता रहा हूं कि सिंपल अगर वो नेट इनकम भी कैलकुलेट करने के लिए कह देता तो आपको फिर खुद हर एक कैलकुलेशन करनी पड़ती। अदरवाइज सम क्वेश्चंस में आपको ये कहा जा सकता है प्रिपेयर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। ये सारी चीजें भी आपको कह सकता है वो, लेकिन जब आपको वो नहीं कह रहा और सिंपल आपको कह रहा है कि कैलकुलेट नेट इनकम, तो दिस इज एन अंडरस्टूड दैट यू हैव टू कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग। आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट भी बनानी पड़ेगी और आपको इनकम स्टेटमेंट भी बनानी पड़ेगी, तब जाकर आप नेट इनकम पे आएंगे। तो इसलिए इसको मैं इस पर स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ, जोर इसलिए दे रहा हूँ कि आपको इस तरह का क्वेश्चंस भी आएंगे कि जिसमें आपको कहा जाएगा कि कैलकुलेट दिस अमाउंट, कैलकुलेट दिस अमाउंट, और फिर आपको सारे का सारा प्रोसेस थ्रू आउट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिंपल जब आपके सामने क्वेश्चन आता जाएगा आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से आइटम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, कौन कौन से अवेलेबल नहीं है, आप उसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे। इसमें बेहिसाब एग्जांपल्स आपकी हो सकती हैं, इसमें आपके पास मिसिंग डाटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके पास, आपको वो कुछ भी बता सकता है। आपको इन केस वो कहे कि जी वी डू नॉट हैव सेल्स, लेकिन आपको वो ग्रॉस प्रॉफिट बता देता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, तो कैलकुलेट किया जा सकता है ना उसको कि आपने ग्रॉस प्रॉफिट कैसे बनाया था, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे आपने 3,70,000 कैलकुलेट किया था, लेकिन आपको ग्रॉस प्रॉफिट बता देता है वो और कहता है कि सेल्स भी बताएं कितनी थी, तो फिर आप ग्रॉस प्रॉफिट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐड करेंगे तो आपके पास सेल्स आ जाएंगे। ऐसे ही आपने माइनस करके पहले डिडक्ट किया था। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन इन विच we prepared cost of goods sold statement and then we prepared income statement। ये आपने सारे का सारा काम कंप्लीट किया। नाउ आपने जर्नल एंट्रीज इसकी कैसे की? आपके पास आपने मटेरियल परचेज किया, आप लेबर को वर्क इन प्रोसेस में लेके गए, एफएच को वर्क इन प्रोसेस में लेके गए, फिर जो फैक्ट्री ओवरहेड्स थे उनको आप वर्क इन प्रोसेस में लेके गए, वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड्स में गए और फिनिश गुड्स से आपने फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल्स बना दी। आपने सारे का सारा प्रोसेस किया, लेकिन इनकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी आपको पता होना चाहिए कि आपकी जर्नल एंट्रीज क्या है। कमिंग बैक टू अवर जर्नल एंट्रीज, first we have purchased material. If you go back to our total question, you will see that there are some components which were put it into the work in process। आपको वो फ्लो भी पता है कि आप क्या करते हैं, मटेरियल, लेबर और एफओएच, इसको आप वर्क इन प्रोसेस में लेके जाते हैं। वर्क इन प्रोसेस से आप फिनिश गुड्स में जाते हैं और वहाँ से आप सीजीएस बना रहे होते हैं। यही आपका प्रोसेस है जो हर जगह यूज होगा। लेकिन आपने काम कैसे करना है? आपने मटेरियल परचेज किया, कितने का मटेरियल परचेज किया था? आपने मटेरियल परचेज किया, उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। मटेरियल इन्वेंट्री आपकी डेबिट होगी, 1,80,000 मटेरियल, और अकाउंट्स पेबल या कैश को आपने क्रेडिट किया 1,80,000 से। एक जनरल एंट्री आपने कंप्लीट कर दी। फिर मटेरियल को आप वर्क इन प्रोसेस में लेके गए। कुछ मटेरियल ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ था, कुछ आपने और खरीद कर उसको टोटल को वर्क इन प्रोसेस में ले गए, और वो अमाउंट आपकी आप देखें उसको अपने क्वेश्चन में तो 1,95,000 लिखा हुआ था। तो फिर आप क्या करेंगे, वर्क इन प्रोसेस 1,95,000 से डेबिट और मटेरियल इन्वेंट्री आपकी 1,95,000 से क्रेडिट।
आपने मटेरियल को, इस मटेरियल को कहाँ ले गए, वर्क इन प्रोसेस में। फिर अब आपने लेबर को लेके जाना है, तो क्या करेंगे, अगेन वर्क इन प्रोसेस डेबिट, और इसकी अमाउंट थी 2 लाख, और इसको आप या तो पेरोल लिखेंगे या फिर आप इसको लेबर लिख लें, वट एवर द अमाउंट यू कैन मेंशन हियर। आपने ये प्रोसेस भी कंप्लीट कर दिया। थर्ड, आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स को भी कहाँ लेकर जाना है, वर्क इन प्रोसेस में। तो क्या करेंगे आप, आपके पास वर्क इन प्रोसेस डेबिट किया और उसकी अमाउंट आपको पता है कितनी अमाउंट थी, उसकी टोटल अमाउंट आपकी 2,05,000 की थी। 2,05,000 से आपने डेबिट किया और FOH 2,05,000 से आपने क्रेडिट कर दिया। आपने ये तीनों जर्नल एंट्रीज जो की हैं, ये आपने पहला काम कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब आपने इसके बाद इस वर्क इन प्रोसेस को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, एंड यू नो दैट कि जो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड थी, उनकी कॉस्ट आपको ऑलरेडी पता है कि कितनी थी वो, तो आप उस मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट को लेकर जाएंगे अपनी फिनिश प्रोडक्ट्स में, फिनिश गुड्स में। तो आपके पास फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री आपकी डेबिट हो जाएगी और क्रेडिट आप करेंगे वर्क इन प्रोसेस। अब ये यहाँ से अमाउंट आपकी फिनिश गुड्स में चली गई है और अमाउंट आपको पता है कि वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट कितनी थी, दैट वाज 6,10,000। 6,10,000। अब इसमें से आपने चीजें सेल कर दी हैं, कितनी सेल की हैं, वी ऑलरेडी नो अबाउट इट, 5,80,000 की आपने FOH में फिनिश गुड्स में से चीजें सेल कर दी हैं। तो फिर क्या करेंगे आप, इस फिनिश गुड्स को लेके जाएंगे CGS में। आपके पास अगेन CGS डेबिट हो जाएगा और फिनिश्ड गुड्स क्रेडिट हो जाएंगे और अमाउंट आपकी 5,80,000 की, 5,80,000। आपने यहाँ पे सारा काम अपना कंप्लीट कर दिया हुआ है। किया कैसे, मटेरियल को कहाँ लेके गए, वर्क इन प्रोसेस में, तो आपने वर्क इन प्रोसेस को डेबिट किया। वर्क इन प्रोसेस को कहाँ पे लेके गए, फिनिश गुड्स में, आपने फिनिश गुड्स को डेबिट किया और उसका जो कॉन्ट्ररी अकाउंट है, काउंटर अकाउंट है, वो आप क्रेडिट करते रहे। मटेरियल को वर्क इन प्रोसेस में लेके गए, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल क्रेडिट कर दिया आपने, लेबर क्रेडिट की और आपने FOH क्रेडिट किए, और कहाँ जा रहे हैं वर्क इन प्रोसेस में, उनको आपने डेबिट किया। देन फिर आपने वर्क इन प्रोसेस को फिनिश गुड्स में लेके गए, फिनिश गुड्स डेबिट कर दिया, फिनिश गुड्स बढ़ गई आपकी, वर्क इन प्रोसेस कम हो गया, क्रेडिट कर दिया। देन आपने फिनिश गुड्स कहाँ लेके गए, सेल कर दी हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स बन गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन गई, आपने उसको डेबिट कर दिया, क्रेडिट में आपने फिनिश गुड्स। अप्लाई वही रूल हो रहा है डेबिट और क्रेडिट का। ये सारे के सारे आपके एसेट्स हैं, ये सारे के सारे आपके एसेट्स हैं। फर्क सिर्फ यहाँ पे CGS का है, दैट इज एन एक्सपेंस, और इंक्रीज इन एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट। फिनिश गुड्स आपका एसेट है, वो क्रेडिट हो रहा है, डिक्रीज कर दिया आपने। फिर आपने अपनी सेल्स की जनरल एंट्री करनी है, जो आपने सेल्स की थी। सेल्स डेबिट होती है, क्रेडिट होती है, या आप सेल्स की एंट्री कर रहे हैं, आपके पास आपने अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट किया, अमाउंट क्या है आपकी 9,50,000 की, और क्रेडिट क्या कर रहे हैं, सेल्स रेवेन्यू 9,50,000 से आपने ये सेल्स की भी जनरल एंट्री कंप्लीट कर दी है। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर ऑल द जनरल एंट्रीज, और इन जनरल एंट्रीज को फिर आप लेकर जाते हैं अपने लेजर्स में, जो उनके रेलेवेंट लेजर्स होते हैं, वहाँ से आपके ट्रायल बैलेंस बनते हैं, फिर आप इनको क्लोज भी कर रहे होते हैं। इनके टेम्प्रेरी अकाउंट्स होंगे, वो सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे, और जो आपके परमानेंट अकाउंट्स हैं वो कैरी फॉरवर्डेड होंगे। अब आप खुद देखें कि इसमें कौन कौन से आपके कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं अमाउंट्स, उनको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और जो आपके टेम्प्रेरी अकाउंट्स हैं उनको आप क्लोज कर देंगे।
सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर जर्नल एंट्रीज। इसके अलावा आपकी सिर्फ दो बेसिक जर्नल एंट्रीज रह चुकी हैं, एक सेलिंग एक्सपेंसेस की और दूसरी आपकी इनकम टैक्स की। ये दो जनरल एंट्रीज हैं जिनको आपने करना होगा, क्योंकि आपने बाकी सारी एंट्रीज कर दी हैं। आपने मटेरियल लेबर एफओएच से स्टार्ट किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर पहुंच गए, फिर आपने सेल्स कर दी। सेल्स करने के बाद फिर आपके पास दो और आइटम्स हैं, एक आपके पास सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस 1,50,000 का, या तो आप कैश देंगे उसके अगेंस्ट या आपका वो अकाउंट पेबल बन जाएगा 1,50,000 का। दूसरा आपने टैक्स पे किया है, या तो वो इनकम टैक्स एक्सपेंस होगा, इसको आप अकाउंट्स पेबल भी कह सकते हैं, या इनकम टैक्स पेएबल, एंड अमाउंट इज योर 88,000। आपने यहाँ पे काम कंप्लीट कर दिया, आपने सारे एक्सपेंसेस, सारे रेवेन्यूज, सबकी जर्नल एंट्रीज कर दी, और जितनी भी जर्नल एंट्रीज होनी थी वो सारी की सारी आपकी अब कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद आपकी क्लोजिंग एंट्रीज होंगी। क्लोजिंग एंट्रीज होने के बाद फिर ये सारी की सारी अमाउंट आपकी वो शिफ्ट हो जाएगी आपके कैपिटल अकाउंट में। So that is all about our lecture number 25 what we have discussed. We started from our previous lecture. We started from practice questions. Previous overview दिया, practice question किया, उसमें हमने cost of goods sold बनाई, उसके बाद फिर हमने income statement बनाई और then उनकी journal entries की. So that is all about our lecture number 25. So inshallah we will meet in our lecture number 26 which would be a brief continuation of this lecture. उसके बाद फिर हम जो है वो कुछ और इन्वेंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।